Everyone, online class 8th, subject SST, lesson 10. Our society, हमारा समाज. Our society, when people live in an amicable and friendly environment, a society is formed individual in a unit of the family. The family is a necessity and society is an organization. The virtue of a man being social is due to mutual dependence. Man is a social animal and cannot fulfill his needs and interest without society. व्यक्तियों के आपस संबंधों से समाज बनता है। व्यक्ति परिवार की का इकाई है। परिवार एक आवश्यकता है तथा समाज एक संगठन है। पारस्परिक निर्भरता के कारण सामाजिकता का गुण मनुष्य से स्वभाव से है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, अतः समाज में पृथक रहकर वह अपनी आवश्यकताओं व हितों की पूर्ति नहीं कर सकता है। द सोसाइटी is an organization and it has a structures. It has its own culture and education. The values of society also change according to the needs and circumstances. समाज एक व्यवस्था है, इसकी एक संरचना होती है। समाज में अपने संस्कार एवं शिक्षा होती है। बदलती परिस्थितियों में आवश्यकताओं के कारण समाज की मान्यताओं में परिवर्तन होता रहता है। Our society still suffers from the evils of narrow casteism. The stigma of untouchability persists even today. Position of women in India is not at par with men. Cases of child marriage, death, feast, begging, drinking of liquor and drug addictions, दौर and various such problems exist in our country. हमारे समाज में अभी भी जातीय संकृता छुआछूत व्याप्त है। स्त्रियों को पुरुषों के समान स्थिति प्राप्त नहीं हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य समस्याओं जैसे बाल विवाह, मृत्यु भोज, भिक्षावृत्ति, नशीले पदार्थों का सेवन, दहेज प्रथा आदि विद्यमान है। एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी, शिक्षा और लोकतंत्र. Education means to instill values and to groom future citizens as per requirement of the society. Proper education can create awareness which can make the society progressive. In ancient India, society was progressive and rich, but the country suffered a lot due to hundreds of years of foreign rule. During British rule, education of Indians was not given importance. The technical education was nil. Domestic industries were not promoted. After independence, India took measures to provide education to people by opening schools, colleges, universities, and technical education centers. At present, education is given adequate importance. शिक्षा का अर्थ समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप व्यक्ति के निर्माण करना एवं उससे संस्कारित करना है। एक अच्छी शिक्षा द्वारा व्यक्तियों को में जागृति लाकर समाज को उन्नत बनाया जा सकता है। प्राचीन भारत में समाज उन्नत व समृद्ध था, किंतु सैकड़ों वर्षों की परतंत्रता के कारण देश में के समाज में काफ़ी क्षति हुई। ब्रिटिश शासनकाल में भारतीयों की शिक्षा को अधिक महत्व नहीं दिया गया। तकनीकी शिक्षा शून्य थी। घरेलू उद्योग धंधों का प्रोत्साहन नहीं दिया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में बड़ी संख्या में विद्यालय, महाविद्यालय एवं तकनीकी शिक्षा संस्थानों की स्थापना कर व्यक्तियों को शिक्षित करना प्रारंभ किया। वर्तमान में शिक्षा की समुचित महत्व दिया जा रहा है। Technical and professional education is being given proper attention at present. वर्तमान में तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा का भी उचित प्रबंध किया गया। डेमोक्रेसी इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नेंस वाई इन द लॉ ऑफ ऑर्डर ऑफ ए कंट्री इज conducted. Success of democracy depend on the active participation of citizens in different spheres of activities. Participation can be effective only when the citizens are in a position of differentiate between right and the wrong. They know their rights and their conscience conscious of their duties. They should be able to weigh a public issue in a more balanced way and have a better understanding of problems both national and
international these are some of the qualities a citizen is expected to develop throughout education to make him aware and well informed. Such a citizen's help in the smooth functioning of a democratic government. Meaningful participation is possible only through the spread of education. Only enlightened citizens can help a democracy to grow. लोकतंत्र एक शासन प्रणाली है। इससे किसी भी देश के शासन व्यवस्था को संचालन किया जा सकता है। लोकतंत्र की सफलता विभिन्न कार्य क्षेत्रों में नागरिकों की सहभागिता पर निर्भर है। यह सहभागिता तभी प्रभावकारी हो सकती है जब नागरिक उचित और अनुचित में भेद कर सकने में समर्थ हो। अधिकारों को साथ कर्तव्यों की जानकारी ही नहीं, उनका पालन करने में भी तत्परता हो। नागरिकों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समस्याओं की समझ हो। शिक्षा में व्यक्ति जागरूक व उत्तम नागरिक बनते हैं। उत्तम नागरिक लोकतांत्रिक सरकार के संचालन में सहज सहयोग देते हैं। केवल शिक्षित एवं सजग नागरिक ही लोकतंत्र के विकास में सहायक हो सकते हैं। For the literate people in the age group over 15 years, a public literacy drive is being run in India. The aim of this program is not merely educating but also to provide work-oriented literacy. The meaning of work-oriented literacy is thus: हमारे देश में 15 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों में एक बड़ी संख्या में निरक्षर हैं। उनके लिए जन साक्षरता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में लक्ष्य केवल पढ़ना लिखना सीखना भर नहीं है, बल्कि क्रियात्मक साक्षरता प्राप्त करना है। क्रियात्मक साक्षरता का अभिप्राय इस प्रकार है: सेल्फ रिलायंस, रीडिंग राइटिंग एंड इन मैथ्स, आत्मनिर्भरता पढ़ाई लिखाई व गणित में। टू नाउ वंस ऑन वीकनेस, अपने अभाव के कारणों को जानना। टू मेक इफर्ट्स टू रिमूव द वीकनेस, अभाव के कारणों को दूर करने का प्रयास करना। टू नाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल यूनिटी, इंटीग्रिटी, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन एंड ऑफ स्मॉल फैमिली, राष्ट्रीय एकता और अखंडता, पर्यावरण संरक्षण एवं छोटे परिवार को महत्व जानना। मेजर सोशल प्रॉब्लम, प्रमुख सामाजिक समस्याएं। सम सोशल प्रॉब्लम आर द hurdle in the growth of our country. Main problems like communalism, linguistic casteism, separatism. About this you have read in the lesson of national integrations. Now you will know about the literacy women positions in society, education to drugs, child labor etc. in class lesson. हमारे देश में विकास में कुछ सामाजिक समस्याएं बाधक हैं, जिनमें इनमें से प्रमुख है सांप्रदायिकता, भाषावाद, जातिवाद, पृथकतावाद। इस विषय में अपने राष्ट्रीय एकीकरण नामक अध्याय में पढ़ा होगा। शिक्षा का अभाव, परिवार में महिलाओं की स्थिति एवं नशीले पदार्थों का सेवन, बाल श्रम, इन समस्याओं के विषय में आप इस अध्याय में आगे पढ़ेंगे। लिटरेसी, शिक्षा का अभाव। Lack of education is called literacy. Education is very important for a democratic state. Educated citizens help to develop democracy. The educated persons keep away himself from different social evils and also inspires others to shun these evils. Since ancient times, there has been a tradition of proper education in India. In fact, in India, colonial ruler did not make efforts to impart education at all. Only 80% of the total population were educated. After independence, India made serious efforts in this direction, but even today only 74% people are educated and a large number is illiterate. The educated man not only saves himself from social evils but can also help in the production capacity by using his knowledge of science and technology. Thus, he can increase his income by obtaining proper return for his labor. Hence, getting education is a must for all. लोकतांत्रिक राज्य
के लिए शिक्षा अति आवश्यक है। शिक्षित नागरिक लोकतंत्र का विकास में सहायक होते हैं। शिक्षित व्यक्ति विभिन्न प्रकार सामाजिक बुराइयों से स्वयं दूर रहता है तथा अन्य व्यक्तियों को भी इस हेतु प्रेरित करता है। भारत में प्राचीन काल से ही सुव्यवस्थित शिक्षा की परंपरा रही है। ब्रिटिश काल में सीमित प्रयास किए गए अतः केवल 18% लोग ही शिक्षित हो सके। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस दिशा में काफ़ी प्रयास किए गए, किंतु वर्तमान में भी लगभग 74% लोग ही शिक्षित हो सके हैं। अभी भी बड़ी संख्या के लोग अशिक्षित हैं। शिक्षित व्यक्ति न केवल सामाजिक बुराइयों से बच सकता है, बल्कि वह अपने अर्जित ज्ञान से विज्ञान व तकनीकों का प्रयोग करके उत्पादन क्षमता की वृद्धि कर सकता है। इस तरह अपने श्रम के समुचित मूल्य प्राप्त करके अपनी आय की वृद्धि कर सकता है। अतः शिक्षा प्राप्त करने के सभी के लिए अति आवश्यक है। Now efforts are being made by the government to educate the illiterate people. The children are being attacked to schools through various schemes. Parna Varna circles have been formed in the village of MP. We know that only educated citizens can be helpful in the development of a country as well as democracy. Hence, we must drive out ignorance and literacy from our country. अब हमारी सरकार निरीक्षणों की सुरक्षा बनाने हेतु प्रयासरत है। नई नई योजनाओं द्वारा बच्चों को पढ़ाने हेतु स्कूल लाने का प्रयत्न किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में पढ़ना बढ़ना संघ गांव में बनाए गए हैं। हम जानते हैं कि शिक्षित नागरिक ही लोकतंत्र और देश की विकास में सहायक हो सकते हैं। इसलिए हमें इस देश से अज्ञानता और अशिक्षा को समाप्त करना है। थैंक यू।